लेकिन नॉर्मली मैं रिकॉर्डिंग जो लैब्स करता हूँ और जो लैब्स नहीं होती उनके नहीं करता। वो एक रीजन है। रीजन सिर्फ ये है कि मेरे लिए कोई मसला नहीं है, ना मुझे इसके लिए कोई चार्जेस आते हैं, लेकिन फिर स्टूडेंट्स जो होते हैं क्लास लेना छोड़ देते हैं कि जी बस रिकॉर्डिंग पढ़ लेंगे ना, क्या जरूरत है क्लास लें। तो दैट मेक्स समथिंग पुअर, बिकॉज यहाँ पे आप क्वेश्चन कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग से तो आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग में तो एहसान अवेलेबल नहीं होगा। तो फिर इस हैबिट को नहीं अपनाना कि क्यों क्लास में जाऊं। तो होनी चाहिए कि भाई अगर कोई चीज आपसे नहीं हुई तो वो पूरा लेक्चर पढ़ने की बजाय फ्रॉम द ई बुक, फिर भी नहीं कहूंगा ई बुक मत पढ़ो, वो पढ़ो दैट इज फ्रॉम द सिस्को, दैट इज समथिंग वैल्यूएबल, फ्री में आपको मिल रही है। तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप वो बुक खरीदना चाहें तो शायद आप जो फी पे कर रहे हैं उससे ज्यादा सिर्फ वो बुक उसकी कीमत है। तो इट इज समथिंग गुड फॉर यू। Anyhow, I started recording. So, can I say now that I have explained two things? One is the how Switch learns and how use this learning and put this learning into the Mac table, and then use this Mac table to forward the your frames. Okay. Anyhow, why you are leaving, Saad? Any problem? Okay, there's some urgent work. Okay, okay. So you will get the recording then. No problem. No problem. Okay, let me continue. So we continue with the this. So which means I explained both things. कोई question है तो कर लें, otherwise I may go further. So the two steps process क्या हमने पढ़ा कि जी examine the source address, जैसे मैंने पहले बताया कि you look at the source address. लंबा सा क्वेश्चन आ गया है ताबिश से, सर if 10 nodes are connected to a switch and if there is flooding, every node will receive, but the one whose MAC address matches destination MAC address will process further, but in broadcast every node will. यस, एक उसने डिफरेंस एक्सप्लेन किया है ताबिश ने कि वो चीज अंडरस्टैंडेबल है, विच इज गुड टू पॉइंट आउट कि अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं बिटवीन दी ही शोड गिव मी दी डिटेल अबाउट दी फ्लडिंग एंड ब्रॉडकास्टिंग। तो फ्लडिंग का तो मतलब ये है कि अगर आपसे मैच नहीं करता तो बस गिरा दें, लेकिन अगर ब्रॉडकास्ट एड्रेस है तो इसका मतलब है कि फिर तो वो आपके लिए है, क्योंकि सोर्स ने जानबूझ के आपके लिए भेजा है। तो फिर आप उसको ना सिर्फ लेंगे, एवरीवन विल टेक इट एंड विल प्रोसेस इट। वाइल फ्लड में अगर आपसे मैच करता है तो यू विल प्रोसेस इट एंड फॉर द रिमेनिंग यू विल थ्रो इट आउट। तो यस, दिस इज ट्रू। थैंक यू। So you examine the source addresses and you put this source addresses into Mac table, and you keep this for some time, not forever. Like for example, for 5 minutes, and after 5 minutes you flush or you remove that entry. हाँ, अगर उस 5 मिनट के अंदर उस पर कोई और पैकेट आ जाता है, कोई और फ्रेम आ जाता है, तो you will refresh it for the next 5 minutes, and in this way your MAC address table will continue to be uh, available. Is it clear, everyone? So I explained this, I used this figure, which was good to explain. So basically this figure which I have shown you, I have taken from this video, which was the MAC address table. So I request people to read it as well, but नहीं भी तो मैंने उस चीज को एक्सप्लेन कर दिया है। Okay. Now explain the two forwarding methods. The two forwarding methods. The one which is mostly used, forward switching method.
And the second one which may be used, I explain the difference between the two first, and then we discuss it further. The first one is store and forward, because you know that your frame, जैसे मैंने एक दो स्लाइड पहले आपको बताया कि your frame has a payload, because this is the second, and you are getting from the network layer, and you will add a header and a trailer. कुछ देर पहले ही मैंने ये बात एक्सप्लेन की. सो जब तक स्टोर एंड फॉरवर्ड का मतलब ये होता है, स्टोर एंड फॉरवर्ड का मतलब ये होता है कि इफ दिस इज स्विच 1 and this is switch 2, for example, or if it is even a single switch, not essential that they need to be two. So what is happening? This is the node 1, number 1, and there is other node which is node n, for example, or node 6, for example. Okay, so here it is the switch, and here it is the first node, here is the next node. I call it node. क्या हो रहा है, क्यों गायब हो जाता है? Anyhow, I try again. Annotation, annotate, and yeah, I'm here. Pen, pencil, and I use this switch is here, and the switch is connected to. I can go to the whiteboard, लेकिन ये साथ आपके available होता है, इसलिए आपको ज़्यादा अच्छा समझ आ जाता है. That's the reason I'm using writing as well as. Here is the node 1 and here is the node 6, for example, and I'm explaining you the store and forward. When the complete frame is received here, the job is that it should store it in its buffer. Kyun? Because it will perform the check, and if the CRC check is good, which means the packet is not corrupted, then it will forward it to the next node. तो इससे फायदा ये होता है कि आप, ठीक है, चीजें स्लो हो गई, लेकिन अगर कोई फ्रेम फॉल्टी है तो वो कम से कम आगे एक स्विच से दूसरे स्विच पे और अगली नोड पे और अगली नोड पे हो सकता है कि आपकी अगली यहाँ पे एक अलग स्विच लगा हुआ है, तो वो एक फॉल्टी फ्रेम जो है वो एक पूरे नेटवर्क पे घूम रहा है. It will never occur. So this method is mostly implemented in your switches, which is store and forward, क्योंकि अदरवाइज सीआरसी का मकसद ही खत्म हो जाएगा, फॉरवर्ड एरर डिटेक्शन का मकसद ही खत्म हो जाएगा. एंड नोड पे जाके पता चलेगा कि जी वो तो फॉल्टी था, तो उस वक्त क्या फायदा कि उसको हमने पूरे नेटवर्क में बैंडविड्थ उस पे कंज्यूम करवा दी. तो दिस मेथड इज कॉल्ड स्टोर एंड फॉरवर्ड, that receive the entire frame and ensures the frame is valid. By valid means not in error. Store and forward switching is Cisco's preferred switching method. तो अगर you know, okay, the question is if the frame was faulty, will the sender be notified from Tabish? The answer is, because we are studying layer 2, layer 2 is not interested to notify this. So my answer is no. However, the question is कि क्योंकि ये जो फ्रेम है इसके ऊपर कोई सेगमेंट है, सेगमेंट से बना हुआ है, तो सेगमेंट को एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलेगी, विच इज द टीसीपी केस. तो टीसीपी विल इन्फॉर्म हिम कि जी आई हैवंट रिसीव्ड इट, बट दिस इज नॉट द जॉब ऑफ द स्विच, दिस इज नॉट द जॉब ऑफ द डेटा लिंक. I think I responded Tabish. Usman, you correctly answered no. Yes sir, got it. तो इसलिए वजह से हर लेयर अपना काम करती है, दूसरे के काम में दखल अंदाजी नहीं करती. ये स्विच पाकिस्तानी नहीं है कि अपना काम तो करते नहीं, दूसरे के काम में हमेशा कीड़े निकालते रहते हैं ना. तो नो,
यहाँ पे ये होता है कि हर कोई अपना अपना काम, हर लेयर अपना अपना काम करती है, तो द डेटा लिंक लेयर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू डू इट, इट इज ओनली रिस्पॉन्सिबल कि अगर इफ इट इज करप्टेड, थ्रो इट, सिंपल. द नेक्स्ट वन इज द कट थ्रू. द कट थ्रू का मतलब ये होता है कि अगर कोई पैकेट यहाँ पे आया है, तो अगर लाजमी तौर पे जैसे कि हमें पता है कि दिस पैकेट कैन बी ऑफ एनी साइज, फॉर एग्जांपल इफ इट इज एन ईथरनेट स्विच, तो दिस साइज कैन बी अप टू 1500 बाइट्स. So 1500 bytes will be stored in the memory first, then the CRC will be performed, and then it will be compared, and then it will be you will look at the source MAC address and destination MAC address as I explained in the previous few minutes, and then we will send it to the node number 6. So which means we are taking time. Why not कि अगर, और आपको पता है यही वजह मैंने आपको बताई थी, इफ यू रिमेंबर, कि सबसे पहले डेस्टिनेशन का एड्रेस क्यों लगाते हैं फ्रेम के अंदर, क्योंकि पैकेट ने, आपके डिवाइस ने, आपके स्विच ने सबसे पहले डेस्टिनेशन एड्रेस पढ़ना होता है कि और इस डेस्टिनेशन एड्रेस को वो जाके ढूंढता है मैक एड्रेस टेबल के अंदर. तो ये उसने, अगर आपको उसको पहले, और आपको पता है कि ये एड्रेस कितना है, 48 बिट्स, विच इज हाउ मेनी बाइट्स, 8 बाइट्स ओनली. ठीक है ना. तो पहले इंस्टेड ऑफ दिस यू शुड बी वेटिंग फॉर 1500 बाइट्स टू रिसीव एंड देन डू द प्रोसेसिंग, स्टार्ट द प्रोसेसिंग. व्हाई नॉट, यू शुड रिसीव ओनली द फर्स्ट 8 bytes, and based upon this it should decide and send it. So this method is faster and it is called cut through switching. Mostly the IP switches, mostly the electrical switches, may I call them electronic switches, जो कि हम इस्तेमाल करते हैं, जो कि मैंने कल भी आपको बार बार अपनी उस पर दिखाता रहा, और इस वक्त जितने भी लोग मेरे साथ क्लास में मौजूद हैं, ये सब ने यूनिवर्सिटी में जो रैक्स हैं हमारी लैब्स में लगे हुए हैं, उन्होंने वो देखे हुए हैं. तो यू नो एटलीस्ट फ्रॉम द आउटसाइड दैट व्हाट इज अ स्विच. कल मैंने आपको उसकी फिगर भी मैंने अपने फेसबुक पेज के ऊपर उसको अपलोड भी किया था, और आप लोगों के साथ क्लास के दौरान राउटर और स्विच को शेयर भी किया था. तो आपको पता है कि वो पूरे के पूरे 1500 बाइट को रिसीव करने की बजाय, so these switches, sorry, what I want to explain, are always uses the store and forward method. However, the optical switches, which we called as the cross connects, they use the cut through method. Why? Because आप कहेंगे क्यों? Because you know optical fiber में the chances of attenuation and losses and corruption is very low. That's the reason it is better to use the cut through method. I think you people got it. Yes, sir. Good. But both methods explain and समझ भी आ गई, तो इट्स गुड. ओके, तो वही बात बता रहा है कि जी इसमें स्टोर एंड फॉरवर्ड में क्या होता है कि स्टोर एंड फॉरवर्ड में यू हैव दी, फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन डू दी एरर चेकिंग. तो फायदा ये है कि एक गलत जो फ्रेम है वो आगे नहीं जाएगा. तो स्विच विल चेक द फ्रेम चेक सीक्वेंस, and you know in the frame check sequence which is 32 bit, what we have performed the CRC. See? And do remember that in Ethernet we are using the CRC 32. In some technologies we may be using CRC 16. In some of the technologies, for example wireless, we use CRC 8. So it depends. Then you further require, for this error checking, you require that they need to be stored first. So you require at the ingress nodes, you need ingress node or ingress ports, you require the buffering. So the ingress interface will buffer the frame while it checks the frame check sequence. This also allows the switch to adjust for the potential difference in speed between the ingress and egress ports. तो ये भी फायदा है कि आप पहले से देख लेते हैं कि जी इस प्रोसेस के दौरान कि आपकी इनपुट में भी आप यू आर गेटिंग एट ए गीगाबिट and you are sending at a okay. Tabish will explain this in the M1, which is module 1, कि there are two flavors. One flavor ये है कि you implement with each port a buffer, and the second उसके लिए होता है कि फिर हो सकता है कि उस पोर्ट के ऊपर कोई वही ना आए, पैकेट ही नहीं आ रहा. जैसे अभी हमने लास्ट उस डायग्राम में देखा था कि there was a probably a 6 port switch लेकिन only there were 2 devices attached. तो वो जो उसके अपना बफर होगा, that will be wasted. So that is one way where you have a independent, or may I call it a individual
buffers for every ingress port. The second is the shared one, that all the one shares all of them shares the same. Probably my picture has stopped, so I should change the camera. The camera चला है 2.5 घंटे. Okay, so I shifted to the second camera now. So I think it's clear, Tabish. I explained both. So this is the difference between the forward error correction, forward store and forward. Definitely the shared one seems a good option कि सारे लोग उसमें आप वो डालें और फिर वहां से एक्सटर्नल पोर्ट्स की तरफ या जिसको एग्जिट पोर्ट्स या इग्रेस पोर्ट्स कहते हैं उसकी तरफ चीजें भेज दी जाएं. जबकि कट थ्रू में क्या मैंने एक्सप्लेन किया, कट थ्रू में मैंने ये एक्सप्लेन किया कि you go for the source, which means you get the preamble and then you get the destination MAC address. These 8 plus 6, which is 14 bytes, and based upon this you decide किधर भेजना है. So you don't look at the FCS. So and you assume that there will be no loss. और mostly एक concept जो Ethernet में मौजूद था, and that was the collision. So nowadays when we have a full duplex, there is no chance of the collision. लेकिन उस वक्त collision के लिए अगर आप first 46 bytes या 64 bytes अगर आपके along with the header नहीं collide कर रहे, तो there is less chance के अगले एक collision होगी. हर कोई उसको आपको पता है, मैंने आपको लास्ट मॉड्यूल में पढ़ाया है CSMA CD, तो उसमें collision detection भी होती थी और collision को हम नहीं होने देते थे. तो yes, very rightly Yasser pointed out that this CSMA CD जो मैंने भी यहाँ पे लिखने की कोशिश कर रहा हूँ. So here it is with this the collision chances, if you have the 64 bits transmitted on the shared medium, तो फिर चांस नहीं है. तो इस वजह से नॉर्मली कट एंड थ्रू ये कहता है कि पहले 64 बाइट्स रिसीव कर लो, अगर उसमें आपको कोई मसला नहीं मिल रहा तो डोंट गो फॉर द FCS, सेंड इट. तो इसलिए वो कह रहा है कि कॉन्सेप्ट ऑफ कट थ्रू स्विचिंग क्या है, इट्स एप्रोप्रिएट फॉर स्विचेस नीडिंग लेटेंसी लेस देन 10 माइक्रोसेकंड, व्हिच मींस हाई. जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल अभी दी ऑफ योर ऑप्टिकल स्विचेस व्हिच आर कट थ्रू, does not check for the frame check sequencer, so it propagate errors due to bandwidth issues. क्योंकि bandwidth issues इसलिए हो सकता है कि आप अगर आपके most of the frames, which never happens but it may happen, कि अगर आपके most of the frames आपके खराब जा रहे हैं, corrupt जा रहे हैं, and you are sending with errors them, so you are wasting your bandwidth, you understand. ठीक है, and cannot support ports with different speeds going from ingress to egress. तो यहाँ पे उसके बाद ये चांस नहीं है कि क्योंकि बफर आप उसको बफर नहीं कर रहे, अपनी बफर स्पेस को भी बचा रहे हैं. जब बफर नहीं कर रहे तो फिर जो जितना आपको इनपुट होगा उतना ही आपका आउटपुट होना चाहिए. तो दैट जो कि ऑप्टिकल क्रॉस कनेक्ट्स में तो होता है, लेकिन यहाँ पे हमारे अब आपको पता है कि सम पोर्ट्स आर गीगाबिट पोर्ट्स एंड सम आर फास्ट ईथरनेट एंड सम आर ओनली ईथरनेट माइट बी maybe. So in this case it is important that you should buffer it. Clear everyone? Now I come to the second topic, and that is about the switching domains. By switching domain we mean here we want to explain two things. One is the collision domain and the other one is the broadcast domain, and then how to, because they have problems, they are the issues, how to resolve them. So let's move. I start with the collision domain. सबसे मतलब पहले मतलब collision domain का है क्या, और क्या collision domain switches के साथ उसका कोई फायदा हुआ या नहीं हुआ. तो let's explain. आपको पता है कि the legacy Ethernet was either using a bus topology or it was using the hubs. Okay, so if we take, and hub is nothing but a repeater, तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता. So I take here an example of the bus. So what is
that number of nodes are connected to this shared bus, and then at the end we have the terminators. उस वक्त हम लगाते थे, अब इनकी जरूरत नहीं है, just to explain. So here we have the terminators. ठीक है, नहीं आओ, आप लोगों से पूछूंगा जरूर कि कुछ लोगों ने टर्मिनेटर क्यों लगाते थे, टर्मिनेटर क्यों लगाते थे. चलें जी, कौन बताएगा. You want to explain, to mention anyone else as well, because even यासर से इसलिए पूछ रहा हूँ कि उसका शौक है, वो कह रहे हैं मैंने पहले से इन चीजों को पढ़ने की कोशिश की हुई है, लेकिन the rest are the seniors. Do you know why terminator was there? लगता क्यों जरूरत फील नहीं होती. बस अगर 3 नोड्स हैं, 4 नोड्स हैं, 5 नोड्स हैं, by using the coaxial cable I should connect them like this. So in the meantime you should think and I should explain the collision domain. Okay. Now what happens if this device want to send data to this device, for example, Usman said if no DRO mean drop point of data, it their terminator drops. Okay, I explain. कुछ हद तक ठीक, कुछ हद तक गलत, तो I explain. So here it is the node to which I want to send. It might be the adjacent node. कोई लाजमी नहीं है, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि दूर जानबूझ के लेना चाहता हूँ. It may be the adjacent node. So maybe the node 1 I take the adjacent one even, N1 and N2. So you know that this device as first it will do, जिस अभी यासर ने कहा कि जी it will sense the medium. So it is the carrier sense. So it will do the sensing. अगर इसको लगता है कि इसके ऊपर कोई और सिग्नल नहीं है, तो it will start sending its own data. लेकिन जो ही इसने अपना डेटा का पहला बिट ही अभी डाला था, इसने भी सेंस किया, या दोनों ने एक ही वक्त में सेंस किया. अभी एक बिट किसने डाला ही नहीं है, दोनों ने एक ही वक्त में सेंस किया. So because of the sensing of both, they will find the medium as vacant, and both will start putting their data onto the network. And when this data will reach to a certain point, they will collide. And that is the reason it should do the continuously sensing. You will be putting your bits, but you will be continuously sensing it as well. If you know that, for example, the average voltage when you are sending is, for example, 1 volt, and suddenly it changed from 1 volt to 2 volt, it means, or to minus 1 volt, or to any other voltage, so, or 0 volt, for example, other than this volt. So it means it shows us that something else has added to the medium, and you sense it and you find, oh, मेरा data जो है वो तो कहीं collide हो गया है, तो you stop at instantly you stop, क्योंकि आपको पता है उसके बाद कुछ भी अगर आप भेजेंगे तो that will be a loss to the further bandwidth का loss है, time का loss है, no need to further do it. अब मैं तो इस जहां तक आपका ये डेटा एक दूसरे को कोलाइड कर सकता है, that domain is called collision domain. So अब आपको सवाल का जवाब दूं, स्पेशली उस्मान ने, क्योंकि उसने रिस्पॉन्ड किया था. अब अगर लेट करें कि मैं कहता हूं कि कोलिजन नहीं हुई, ठीक है, सो अगर कोलिजन नहीं हुई तो दिस पैकेट विल, इसने लेट करें N1 ने भेजा N2 को, N1 कितने जाएगा इस मीडियम के ऊपर, लाजमी तौर पे आपको पता है इट इज ए वोल्टेज, तो इट विल गो इन बोथ डायरेक्शंस, हियर एज वेल एज हियर. Definitely it will go here as well, but it will not receive it. It will go here as well, it will go here as well. अगर यहाँ पे कुछ ना हो, इसका मतलब कि ये तार खाली है, यूं लगी पड़ी हुई है, तो इट विल डू दी, स्पेशली यू आर द इलेक्ट्रिक इंजीनियर्स, आप लोगों ने ईएमएफ और ईएमडब्ल्यू पढ़ा होगा. ईएमडब्ल्यू में आपको ये पढ़ा है कि यहाँ पे ये जब स्ट्राइक करेगी तो इट विल रीबाउंस बैक, एंड कोई भी, अब तो डेस्टिनेशन को वो चीज पहुंच भी गई है, जो चीज सोर्स ने भेजी है वो डेस्टिनेशन को मिल चुकी है, लेकिन ये सिग्नल यहाँ पे बाउंस बैक करेगा, और बाउंस बैक करेगा अगर कोई और नोड इसको अभी भी जज करेगा, सेंस करेगा, उसको लगेगा यहाँ पे वो मौजूद है, सिग्नल मौजूद है, he will not be sending, this signal will continue coming here, कोई भी नहीं लेगा. यहाँ पे भी अगर टर्मिनेटर नहीं है तो यहाँ पे भी ये बाउंस बैक होगा, तो बस ये बाउंस बैक हमेशा के लिए टक टक होता रहेगा, एंड दिस मीडियम विल बी सीन as busy forever, and no one will be further possible, communication will be possible.
That the reason you put the terminators here and you use the method which is called again सर्किट आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, एंड सर्किट में हमने पढ़ा था मैक्सिमम ट्रांसफर थ्योरम, तो वहां पे हमने पढ़ा था कि यस अदनान वेरी राइट, वोल्टेज स्टैंडिंग वेव्स विल बी जनरेटेड। तो ये चीज स्पेशली इलेक्ट्रिक इंजीनियर्स को ज्यादा अच्छी तरीके से समझ आती है, लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि जहांगीर समझे कि कंप्यूटर साइंस वालों को समझ नहीं आती। हमें जरूरत कंप्यूटर साइंस वालों को इसकी जरूरत नहीं है कि वो उन्होंने तो इसको ऑपरेट करना है ना, हम तो सीसीएनए के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। तो इतना हमें पता है कि अगर कोई चीज टकराती है तो वापस आती है, दैट इज एनफ फॉर अस। तो मैं कंप्यूटर साइंस का को सपोर्ट करता हूँ, नो इशू, बट electric engineers understand it. So terminator actually absorb it. That is the answer which is given by the Usman now. ठीक है Usman and everyone. तो yes it absorbs. तो ये absorb कर लेता है, तो the signal, your channel, your medium become vacant again, and then anyone else sense the medium, feel it free, and communication possible. Okay. So switches eliminate collision. Switches में क्या होता है? स्विचेस में बेसिकली तो आपको पता है कि वो वहां पे आपका ये स्विच है, गुड क्वेश्चन, बट यू आर इलेक्ट्रिक इंजीनियर अगेन। यासिर कहता है व्हाट इज इट इन टर्मिनेटर दैट डू द एब्जॉर्बिंग। तो पानी तो नहीं है कि फॉर्म लगा देंगे, पानी तो नहीं है कि फॉर्म लगा देंगे, तो क्या होता है यहाँ पे आपने सर्किट में पढ़ा हुआ है कि अगर आपकी इम्पीडेंस मैचिंग, अगेन अगर सॉरी, लेकिन आई रिमेम्बर कि हम जो कंप्यूटर साइंस वालों को भी सर्किट 1 सर्किट 2 पढ़ाते हैं तो उनको ये आइडिया है, बट स्पेशली यासिर यू आर इलेक्ट्रिक इंजीनियर, आपने पढ़ा हुआ है कि अगर द इम्पीडेंस ऑफ द सोर्स एंड दिस becomes equal, so all the power is absorbed, if you remember. So that was the maximum transfer theorem as well. So that is used here. So these absorbers, may I call them, which are basically terminators, they have a certain impedance which is equal to the impedance of the medium. Does it make sense? Good. So यहाँ पे engineering काम आती है ना. So here it is the that switches eliminate collision domain and how it reduces now. The question is this now, that here now we have the switch and we don't need to use the carrier sense multiple access in the switch network. What I explained was the classical ethernet or legacy ethernet जिस जब ये बना था 90s में, early 90s में, right? So what is done in the switch now? Everyone is connected to the switch, like here. So this switch is sending to this node is sending to the switch, and on this this is not shared with anyone else, so there is no chance of the collision. So that's the reason it is written here that eliminate collision domains and reduces congestion. मैंने कुछ देर पहले भी कंजेशन जो है वो इस वजह से नहीं रिड्यूस होती। मैंने कुछ देर पहले अभी जो क्लास में ले रहा था मॉड्यूल 1 की थी, मॉड्यूल 1 सब लोगों ने आप लोगों ने पढ़ लिया हुआ है, वहां पे मैंने डिफरेंस एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी बिटवीन द कंजेशन एंड कंजेशन, और आप लोगों के साथ भी शेयर करता हूं, सॉरी फॉर यासर एंड दिस इज जस्ट रिपीटिशन, नो प्रॉब्लम। कंजेशन जो है इन द टेलीकॉम नेटवर्क्स एंड कंजेशन इन द आईपी नेटवर्क्स, स्पेलिंग वही है, meaning totally different है। The congestion in IP networks, which is part of the IP, which is part of the CCNA, यहाँ पे ये होता है कि it is related with the buffer. Like for example, if the packets are coming to this router and it has certain buffer, maybe 100 kilo buffer, and if this 100 kilo buffer is filled, so this buffer is like a queue. You understand that this buffer is like a queue, and when this queue is finished, we finish का मतलब ये नहीं खत्म हो गई, filled. So this is using this queue is using the FIFO, first in first out. So it means any packet which is coming after this will be certainly dropped. So this phenomenon is called congestion in the IP networks. While there is no congestion, मैंने कल ये चीजें आप लोगों के साथ शेयर की थी, all of you, कि जो हमारे
टेलीकॉम नेटवर्क्स हैं वहां पे एवरीथिंग इज डेडिकेटेड टू यू, तो देयर इज नो चांस किसी भी तरीके से, एंड द स्पीड इज कांस्टेंट, तो कोई चांस नहीं है कि आपका बफर फुल होगा, क्योंकि अगर 64 के से अंदर आ रहा है कुछ चीज तो 64 के से बाहर भी जा रहा है, तो योर बफर कैन नॉट बी फुल, so there is no chance of such a collision, such a congestion in the telecom networks. But we use the congestion terminology there as well. Then what is the terminology? Let me explain. कुछ देर पहले मैंने ये एक्सप्लेन किया कि अगर मैं ये पिशावर which we call as the transit exchange of Peshawar, and let it be that transit exchange से मैं बात करना चाहता हूँ to a person who is Habib. Habib is with us in another province which is Quetta, which is Balochistan. ओके गुड, सो क्वेटा में अब वहां पे भी एक ट्रांजिट एक्सचेंज है, क्वेटा की ट्रांजिट एक्सचेंज मौजूद है. डू बफर्स आर देयर इन टेलीकॉम सेक्टर टू रिकॉर्ड क्लास और एनी अदर डेटा. मैं इसकी एग्जांपल दे दूं, जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, अगर मैं आपको जवाब ना दूं तो जस्ट एक रेज हैंड, जस्ट आई एक्सप्लेन यू. सो लेकिन मैं पहले ये टर्म पूरी कर दूं कि व्हाट मीन बाय कंजेशन इन द टेलीकॉम नेटवर्क्स. ओके गुड, सो थैंक्स फॉर द पेशेंस. नाउ हियर इट इज जेंटलमैन कि इस टेलीफोन एक्सचेंज के दरमियान बिटवीन द पिशावर ट्रांजिट एक्सचेंज एंड I assume that they are directly connected, however they are not, because in between them there will be multiple exchanges, might be, maybe Peshawar is connected to DA Khan, maybe DA Khan may be connected, probably Habib may be better to explain me. लेकिन अगर मैं बात करूं between के Peshawar to Lahore है तो very easy for me. Peshawar may be connected with the Islamabad exchange, and Islamabad is connected with the JLM, and JLM is connected to Lahore, क्योंकि हबीब ने हमें कभी बुलाया नहीं कि जी आप भी बलूचिस्तान आए और वहां की सैर करें क्वेटा की. Anyhow, so but we are explaining with respect to Quetta. So what happens that there are number of channels in between these two exchanges. Might be there are okay, he's saying that DI Khan to Zob to KSF, मुझे KSF का नहीं समझ आई, and then KSF to Quetta. KSF stands for किला सैदुल्ला. ओके, तो हमें बता दिया जी सैफुल्ला. ओके, तो हमें हबीबुल्लाह ने बताया कि जी अगर आप कोयटा तक अपनी ये बनाना चाहते हैं तो ये डायरेक्ट नहीं है, लेकिन स्टूडेंट को समझाने के लिए तो कोई बुरी बात नहीं है. तो उसने कहा कि जी आप पिशावर से डीए खान वाले इसको भेजेंगे जोब वाले इसको भेजेंगे किला सैफुल्ला, एंड किला सैफुल्ला इसको भेजेगा कोयटा. हमने एज्यूम के दरमियान में कुछ नहीं है, एज्यूम करने में क्या हर्ज है. So there are multiple channels in between. So this is channel number 1, then this is the channel number 2, and there are 100 channels here, for example. So the first subscriber want to talk because we know हबीबुल्लाह के बहुत से दोस्त हैं, तो फ्रेंड नंबर 1 जब कॉल करता है कोयटा के लिए तो उसको चैनल नंबर 1 मिल जाता है, फ्रेंड 2 करता है, फ्रेंड 3 करता है, फ्रेंड 100 करता है, सबके सब जो है वो अल्दो सबकी एक वक्त में कॉल हबीब नहीं रिसीव कर सकता, लेकिन हम अज्यूम करते हैं हबीब के पास 100 फोन लगी हुई है. नाउ अगर इसका कोई टीचर अब आ जाता है और वो कहता है मैं 101 के ऊपर जाने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पे 101 चैनल है ही नहीं. So which means he will never be able to connect to Habibullah. So in this case, once this call, हम कहेंगे कि नेटवर्क क्या हो गया, कंजेस्ट. ड्रॉपिंग नहीं होती क्योंकि ड्रॉपिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है टेलीकॉम नेटवर्क्स में. यहाँ पे चैनल्स की ना होने का को हम कंजेशन कहते हैं. तो आई एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन कंजेशन इन दी टेलीकॉम नेटवर्क्स एंड इन दी आईपी नेटवर्क्स. अब मैं आता हूँ जी ऑन द क्वेश्चन जो कि मैंने लीव किया था फॉर a certain short time, and that question was from Usman. उस्मान का क्वेश्चन था कि so do buffers are there in telecommunication sector to record calls or any other data? So the answer is no. We don't have any. हम सिर्फ ये चीज रिकॉर्ड करते हैं जो कि हमारे अपने काम की होती है. वो ये होती है कि एट व्हाट, किस नंबर ने कॉल की,
किस नंबर को कॉल की गई, किस टाइम पे स्टार्ट हुआ, किस टाइम पे एंड हुआ, हम बस ये चीजें उसके अपने पास स्टोर कर लेते हैं क्योंकि वो हमें बिलिंग के लिए जरूरी होती है। बाकी हमें आपको इसके कोई जरूरत हम स्टोर नहीं कर सकते, ना करने की हमें जरूरत है कि हम आपकी, जहां तक मुझे समझ आ रही है कि आप कह रहे हैं कि जो हम डेटा अगर हम भेज रहे हैं या हम जो वॉइस कॉल कर रहे हैं, क्या पीटीसीएल वाले या टेलीकॉम ऑपरेटर जो है इनको भी अपने पास स्टोर कर रहा होता है? हरगिज नहीं, हमें नहीं जरूरत इसकी। डू यू एग्री विद मी उस्मान? The question is जी कि फिर how the calls are traced? The answer is again कि कॉल उसको ट्रेस की होती हैं कि अगर किसी के ऊपर हमें शक आ जाए, वो भी हमारा काम नहीं होता कि हम ट्रेस करें, देन दी एजेंसीज जो होती हैं उनके पास ये इक्विपमेंट मौजूद होता है। पीटीसीएल वो इक्विपमेंट अपने पास नहीं रखता क्योंकि पीटीसीएल को किसी जरूरत नहीं होती। देन मिसाल के तौर पे किसी क्या कहना चाहिए, किसी टेररिस्ट का नंबर है, किसी जिसके ऊपर उनको एजेंसीज को कोई शक है, कोई मुल्क दुश्मन है फॉर एग्जांपल, तो वो उसके नंबर्स के ऊपर टेलीफोन एक्सचेंज के अंदर ही एक कमरा होता है जिसको कहा जाता है एमडीएफ, तो या स्विच रूम, तो वहां पे वो उसको लगा देते हैं। तो फिर वो कॉल जब वहां पे जा रही होती है तो वो साथ वहीं पे डाइवर्ट भी हो रही होती है, और जो ही कॉल ऑन होती है ये डिवाइस ऑन हो जाता है और वो उसके अंदर रिकॉर्डर होता है, वो रिकॉर्ड करता जाता है। एंड इन दिस वे वो भी टाइमिंग और ये सारी चीजें हमारे पास ऑलरेडी होती हैं, वो अपनी उठा लेते हैं। बट बाकी किसी किस्म का कोई हम रिकॉर्डिंग नहीं करते क्योंकि हमारे पास मिलियंस में यूजर्स होते हैं। मिलियन यूजर्स का अगर हम डेटा इस तरह स्टोर करने लगे तो वी नीड वेरी लार्ज what I should say memory which we don't have. So gentlemen, I was explaining you the collision domain. तो अब हम यहाँ पे देखें, इसका मतलब ये है कि जब ये शेयर मीडियम ही नहीं है अब, तो कोई कोलिजन का चांस नहीं है। हाँ, स्विच की वजह से कोलिजन क्यों खत्म हो जाती है, उसकी इसलिए कोलिजन खत्म हो जाती है या कम हो जाती है क्योंकि आपको मैंने लास्ट M1 में ये क्लियर किया हुआ है कि जब दो इंटरफेसेस एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती हैं, चाहे वो एक स्विच दूसरे स्विच से हो, बेसिकली तो आपको पता है एक पोर्ट दूसरे पोर्ट से होता है। तो जैसे मिसाल के तौर पे अगर मेरे मेरे डिवाइस के अंदर जो पोर्ट है वो एक फास्ट इथरनेट है और मैंने वहां पे उसको गीगाबिट स्विच के साथ कनेक्ट कर दिया है, तो दे विल नेगोशिएट विद वन अनदर, एंड यू नो जो कम होगा उसके ऊपर दे विल एग्री। तो अब अगर दोनों ही 100 मेगाबिट पर सेकंड पे आ गए हैं, अगर ऐसा होता कि पीछे से 1 गीग से आता और आगे मुझे ये 100 से देता, तो इसके पास 900 मेगा इसको अपने पास सेव करना पड़ता, और सेव करने से हो सकता है इसका बफर ओवरफ्लो कर जाता और कंजेशन आ जाती। लेकिन अगर अब आपने उसके साथ ये डिसाइड कर लिया, निगोशिएट कर लिया कि नहीं मैं आपसे लूंगा भी 100 पे और आपको दूंगा भी 100 पे, तो फिर बफर की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी और इस तरह आपकी कंजेशन जो होगी वो बिकॉज ऑफ द स्विच रिड्यूस हो जाएगी। क्लियर एवरीवन? Clear, sir. So when there are full duplex on the link, the collision domain are eliminated. ये भी आपको बताता चलूं कि हमें ये बात तो बड़ी आसानी से और बड़े अच्छे तरीके से पता है कि फुल डुप्लेक्स और हाफ डुप्लेक्स, लेकिन ये याद रखें कि when you are in a simplex, like in your walkie-talkie for example, or in the walkie-talkie for example, or in your TV channels for example, so there is a single channel in one direction. When it is a half duplex, again there is a single channel, but that channel is used bidirectional. That is the reason when you are using a half duplex, like in your, for example, in your walkie-talkie, or for example in your walkie-talkie police radio, so you know they say over, so it means you जब over आप कहते हैं तो you want to clear the channel because there is one channel, तो उसी चैनल पे जाना भी होता है और आना भी होता है, तो अगर आना जाना उसके ऊपर है, the chance of collision is there. लेकिन if it is a full duplex, then there is not a single channel. One channel is for going and one channel is for, जैसे मैंने कल भी एक्सप्लेन किया था, अगर आपको याद हो कि मैंने एक्सप्लेन किया था, फॉर दी
टेलीकॉम कि एक चैनल आपका जाने के लिए होता है और एक आने के लिए होता है, इसलिए उसमें कोई कोई चांस नहीं होता ऑफ दी कोलिजन। तो क्योंकि हमारा आपको पता है स्विचेस आर मोस्टली यूज इन द फुल डुप्लेक्स मोड, so that is the reason it reduces or eliminate the chance of the collision. So collision domain को eliminate करता है. So when there is one or more devices in the half duplex, there will be now be a collision domain, but we are not happy. We mostly never use the half duplex. We go for the full duplex to eliminate the collision domain. There will be no contention for the bandwidth in the switches because this is contention तो होगी कि जब ये switch ये डिवाइस के अलावा कोई इस मीडियम को इस्तेमाल करता, कोई भी इसको इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो there is no contention for the bandwidth. Collisions are now possible only when you are using a half duplex. There is no collision. Most devices including Cisco and Microsoft use auto negotiation as default setting for duplex and speed. Duplex means full duplex. We go for the full duplex and we go for the minimum of the two speeds to eliminate collision domain to eliminate the collision domains and to reduce the congestion. I hope it's clear. Broadcast domain. Then comes to the broadcast domain. Before this, I should make it clear. मिसाल के तौर पे अगर ये हाफ डुप्लेक्स है, आपने कहा वन और मोर लेट करेंगे, if you are using a switch and you are using it as a half duplex, here the negotiation has been done on a half duplex intentionally or so you know this may be क्योंकि अब तो कोलिजन वो नहीं किया जाता, सेंस वगैरह नहीं किया जाता, हो सकता है कि ये भी इधर से भेजने की कोशिश करे और स्विच भी इसको कोई रिवर्स में ट्रैफिक भेज रहा हो, तो देयर माइट बी अ कोलिजन हियर. दैट इज द रीजन the half duplex, we go for the full duplex ताकि यहाँ पे एक चैनल ना हो, दो चैनल हो, one for going, one for coming to this node, so there is no chance of the collision then. Clear, Tabish? Okay, good. Now is what is the broadcast domain? Broadcast domain is eliminated. Yes. So first of all, why we want the broadcast? In some cases we need it. मिसाल के तौर पे आपने लास्ट मॉड्यूल अबाउट द DHCP, और हमने कहा था कि जब हम DHCP की रिक्वेस्ट करते हैं या DNS की रिक्वेस्ट कर भेजते हैं तो हमें नहीं पता होता कि हमारा ये है, तो वी हैव टू डेफिनेटली शाउट, वी एलिमिनेट. ओके, इसका मतलब क्या है सर? एंड देन एक्सप्लेन. यहाँ पे कहने का मेरा मकसद है कि बाद जगहों पे हमें ब्रॉडकास्ट की जरूरत होती है. जैसे मिसाल तो पे क्लास में हम आके तो पढ़ाने शुरू कर देते हैं, तो हमें इसकी जरूरत होती है कि सब लोगों तक हमारी बात पहुंचे, तो वी वांट टू ब्रॉडकास्ट टू द क्लास, राइट? तो क्या आप इसको मल्टीकास्ट भी कह सकते हैं क्या? वी आर नॉट सेंडिंग इट टू द होल डिपार्टमेंट, वी आर ओनली टेकिंग ए सिंगल सेक्शन ऑफ ए बैच, तो यू मे कॉल इट ए मल्टीकास्ट एज वेल, बट हमें बहुत से लोगों तक पहुंचना होता है. इन अदर वर्ड्स, बाज़ वक्त हमें सब तक पहुंचना होता है, तो उस केस में हमें जैसे कि हम पूरे के पूरे डिपार्टमेंट को एक ईमेल कर दें, तो दैट इज लाइक ए ब्रॉडकास्ट, although it is a multi broad unicasts. लेकिन what I want to explain is important is this कि बाज एप्लीकेशंस में ब्रॉडकास्ट की जरूरत होती है. जैसे मैंने आपको बताया द एग्जांपल ऑफ DNS और DHCP और RP1. ARP में भी तो आपको नहीं पता होता ना, अभी हमने एक्सप्लेन किया है. ARP में भी आपको ये नहीं पता होता कि ये IP किसका है, तो यू सेंड दैट ये IP जिसका भी है वो जवाब दे, तो यू हैव टू डू द मल्टीकास्ट, सॉरी ब्रॉडकास्ट, तो वी इट इज रिक्वायर्ड. ओके, लेकिन इसका बैड इफेक्ट क्या है? इसका बैड इफेक्ट ये है कि हो सकता है जरूरत तो एक को हो, दो को हो, लेकिन जिनको नहीं भी है दे विल बी प्रोसेसिंग. जैसे कुछ देर पहले ताबिश ने कहा कि दिस मैसेज विल बी रिसीव्ड बाय ऑल and process it as well. So it means it is the wastage of resources. Good. Wastage of resources means the processing power, maybe the bandwidth and everything. So
we want to reduce this broadcast. So how we do? तो अभी आपको बताऊंगा कि there are two methods. One is to use the routers which stop the broadcast domain, and number two is to use the VLANs. If you don't, and in VLANs again you use the routers as well. So these are the methods. So what is the basically a broadcast domain? In the a layer 2 domain extends across all layer 1 or layer 2 devices on the LAN. यानी चाहे आपकी हब्स लगी हुई हो, चाहे आपके रिपीटर्स लगे हुए हो, चाहे आपके स्विचेस लगे हुए हो, चाहे आपकी ब्रिजेस लगी हुई हो, they are the layer 1 devices, they are the layer 2 devices, they extend the broadcast domain, they don't stop the broadcast domain. Only the layer 2 device, layer 3 devices will break the broadcast domain. It will not allow the broadcast domain to move further, also called the MAC broadcast domain, because it is only within this layer 2. That's the reason it is called the MAC broadcast domain, because MAC is only at the layer 2, you know. So if, for example, if you look at this figure, so if this device, for example, host H1 wants to do a broadcast, so it will come to the switch on which port it receives, which is the ingress port, you know. It will send to, except this ingress port, it will send to all the egress ports this method, and that phenomenon is called broadcast. Similarly, if you can see here in the next slide, that let again the host number 1 sent a broadcast. It will receive the port 1, for example, of the switch. In this example, is receiving the which is the ingress port, is receiving the broadcast message, and it is sent to the all the ports of this switch. It not only sends to the devices, but it also sends to other switch as well, as you can see here. It will also not send on this port, but will send in all. So you can see here that this switch number 2, which is S2 here, has helped us, in other words, I should say, has extended the broadcast domain. So more the layer 1 or layer 2, even instead of the switch, it is a hub. So it works similarly. That hub is a layer 1 device, so it will again send to all. Sir, how many collision how many domains collision in the above? ओके, तो कितने कुल यहाँ पे कोलिजन डोमेन्स हैं, ठीक है ना, कोलिजन डोमेन पूछ रहे हैं, तो जितने भी ये हर एक इंडिविजुअल कोलिजन डोमेन है, इसके साथ कोई दूसरा कोलिजन नहीं कर सकता ताबिश. तो देयर इज नॉट अ सिंगल, जो मैंने प्रीवियस एग्जांपल में दी थी, तो देयर वाज अ सिंगल कोलिजन डोमेन. यहाँ पे यू कैन से देयर आर मल्टीपल कोलिजन डोमेन, बट नो कोलिजन डोमेन इज अफेक्टिंग अदर्स, ठीक है. So when the layer 2 switch receives the broadcast, it will flood it out all the interfaces except the ingress interface. Too many broadcasts may cause the congestion, क्योंकि लाजमी तौर पे they will be, these packets will be saved for nothing in the memory, and because of this the packet will stop. जो अच्छे पैकेट हैं वो भी ड्रॉप होना शुरू हो जाएंगे, और जब पैकेट ड्रॉप होना शुरू हो जाते हैं, तो the throughput or goodput of the network goes down, and overall we say poor network performance. So increasing increasing devices at layer 1 or layer 2 will cause the broadcast domain to extend. जैसे मैंने पहले आपको अभी समझाया कि आपने जो ही S2 लगाया, S2 के आगे आप एक S3 लगा दें, आपका ब्रॉडकास्ट डोमेन उसी तरह बढ़ता जाएगा, which is not desirable. Okay. The question is, या solution is, KG, how to alleviate means reduce the network congestion. How to alleviate the ये जो आप कॉन्सेप्ट कह रहे हैं ना ताबिश, दैट इज ओल्ड कॉन्सेप्ट जिसको कहते थे 543 रूल. वो इस्तेमाल होता था आपके लेगेसी नेटवर्क्स में.
ये कॉन्सेप्ट आपके स्विच्ड इथरनेट का नहीं है। उसमें ये होता था कि 5 आप सेगमेंट बनाएं, 3 उसमें से पॉपुलेट करें और इतने उसमें नोड्स रखें और फिर हम उससे कैलकुलेट करते थे कि कितने मैक्सिमम नोड्स इसमें पॉसिबल हैं। दैट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ द लेगेसी इथरनेट। इन दी स्विच्ड इथरनेट आप जितना मर्जी आगे लेके जाना चाहें ले जा सकते हैं, स्विच के साथ स्विच लगाते जाए। अब देखें ना आपकी यूनिवर्सिटी में है तो कितने कोई पाबंदी है कि एक स्विच से इलेक्ट्रिकल में आया, उसी से लेकर एक ही स्विच से आपने फिर अगले दूसरा स्विच लगा लेते हैं जो कि आप चेयरमैन के दफ्तर ले जाते हैं, तीसरा आप ले जाते हैं वो है जो दूसरी लैब है, मुझे नहीं पता सीएनसी लैब है समथिंग, तीस कहीं आप कंप्यूटर के लैब में ले जाते हैं, कहीं आप दूसरे में ले जाते हैं, तो इट कंटिन्यूज। यस, इन फिगर 1 जो मैंने अभी S1 और S2 जितना भी ये बन जाएगा तो देयर विल बी सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन। यस, ओके जी। अब आप इस मसले को किस तरह कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं? तो हमने कहा जी सबसे पहला इसके लिए हल ये है कि आप फास्ट पोर्ट स्पीड इस्तेमाल करें। बात समझ में आती है कि अगर आप 1 गीगाबिट फॉर एग्जांपल पे ले रहे हैं और आप 1 गीगाबिट पे निकाल भी रहे हैं तो दी बफर विल नॉट बी नेवर। So in this way, your buffer will not become full, and definitely अगर buffer full नहीं होता तो packet will loss will not occur. So in this ways, we reduce the network congestion. ठीक है? So depending upon the model, switches may have up to 100 gigabit per second port speeds. So that your choice. You may go for 100 megabit per second, 1 gig, 10 gig, 40 gig, 100 gig. तो जितना आपका गीग बढ़ेगा इसका मतलब है कि जल्दी से डेटा फ्लो उससे निकल जाएगा। आप जल्दी आप स्विच से निकाल देंगे आपका बफर खाली हो जाएगा, जितना बफर खाली रहेगा उतना ही आपकी कंजेशन नहीं आएगी। अंडरस्टैंडेबल। ओके, द नेक्स्ट वन इज दी स्विचिंग। जैसे अभी हमने बात की थी कि व्हाई वी डोंट यूज द रैम, व्हाई वी गो फॉर द कैम फॉर एग्जांपल। तो द आंसर वाज सिंपली दैट वी वांट फास्ट स्विचिंग। जितनी जल्दी वो डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस पढ़ के और पोर्ट को ढूंढ लेगा उतनी जल्दी वो वहां से निकाल देगा। so if your internal switching within the switch is faster, so definitely, and this in this case your the use of fast internet bus or shared memory can do improve the performance कि सब एक ही जगह पे डालें और सब के सब वहीं से निकल जाए। in this way your internal speed increase of the switch. थर्ड, बफर को आप ज्यादा रखें। अगर आपकी टेम्पररी मेमोरी बड़ी है तो डेफिनेटली चांस ऑफ दी ओवरफ्लो विल बी जैसे आपके घर में अगर टैंकी जो पानी के लिए बनाई गई है अगर वो बड़ी है तो फिर आप उसमें ज्यादा पानी स्टोर कर सकेंगे और ओवरफ्लो नहीं होगा। लेकिन अगर आपने छोटी सी वो रखी हुई है तो जल्दी से पानी उसमें से ओवरफ्लो करना शुरू कर देगा, कंजेशन आ जाएगी। तो दिस कैन बी दी वे। एंड द लास्ट मेथड इज दैट वी शुड गो फॉर दी हाई पोर्ट डेंसिटी। ओके, या सर आपके क्वेश्चन की तरफ आता हूं, लेकिन फोर्थ पॉइंट एक्सप्लेन कर दूं पहले, विच इज द हाई पोर्ट डेंसिटी। इफ यू हैव मोर ports on the single switch, more ports, for example if you have a maybe 40 customers, तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप 8 पोर्ट के 5 स्विचेस लगा लें या आप 48 पोर्ट का एक ही स्विच लगा लें। तो अगर आपका 48 पोर्ट का एक ही स्विच है so उस केस में everyone will be using the single memory and उसी मेमोरी से चीजें निकल भी रही होंगी और उससे डेफिनेटली आपकी 5 चीजें लेने से एक चीज लेने पे आपकी कॉस्ट भी कम आएगी। एंड इन दिस वे आपकी मोर मैनेज्ड ट्रैफिक होगी एंड दिस वे योर chances of the congestion in the network will be reduced. So ये 4 मेथड एज ए डिजाइन, अगर आप कल किसी ऐसी कंपनी में काम करते हैं जहां पे आपने स्विचेस मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो वहां पे आप इन चीजों का ख्याल रख सकते हैं कि जी अगर यू वांट टू रिड्यूस द कंजेशन which improve the performance of the network, so what need to be done, you should go for the fast port speeds, you may go for the fast internal switching, big buffers and more number of ports in the switch. ठीक है? yes, yes Usman, one switch with 8 otherwise क्या होगा, एक स्विच को आप दूसरे स्विच से कनेक्ट करेंगे like this,
एक डिवाइस इधर से इधर जा रही है तो लाजमी तौर पे इसका ये पोर्ट पहले इस्तेमाल होगा, फिर ये पोर्ट इस्तेमाल होगा, फिर मे बी अगले उस पे जा रहा है, तो एक का बफर से दूसरे के बफर में, दूसरे के बफर में, तीसरे बफर में, तो इन दिस वे यू आर वेस्टिंग दीज बफर्स। सो एक वक्त आएगा कि किसी ना किसी एक का बफर फुल हो गया तो वो पैकेट ड्रॉप होना शुरू हो जाएंगे एंड द कंजेशन विल स्टार्ट। गुड। चैप्टर फिनिशेस एंड मैं जब पहले जवाब दूंगा यासर का, एंड फिर आपसे कोई क्वेश्चन अगर हुए तो करूंगा, एंड देन वी विल स्टार्ट फ्रॉम दी। ये कौन सी स्लाइड है? 1.4.6। पहले अफाक इस पे बाद में आता हूं, पहले क्वेश्चन जो किया हुआ है वो है यासर का कि जी कोलिजन डोमेन और ब्रॉडकास्ट डोमेन। तो कोलिजन डोमेन तो आपने स्विचेस लगा के कंप्लीटली एलिमिनेट कर, लेकिन ब्रॉडकास्ट डोमेन अभी भी मौजूद है विद इन सर्टन रीजन यू वांट टू डू दिस। सो और हम डेफिनेटली बाज केसेस में, जैसे मैंने आपको कहा, कोलिजन तो हम नहीं चाहते, तो हमने उसको कंप्लीटली एलिमिनेट किया, खत्म कर दिया। लेकिन ब्रॉडकास्ट हमें में बात जगह में चाहिए, इसलिए हम उसको खत्म तो नहीं करते, लेकिन हम उसको कम करने की कोशिश करते हैं कि जहां जरूरत है कम से कम जगहों पे उसको इस्तेमाल किया जाए। यानी कि जितने कम होंगे तो एक से ज्यादा डेफिनेटली आपको डीएनएस सर्वर्स पे लगाने पड़ेंगे, लेकिन अदरवाइज आपके पूरे यूनिटी में अगर एक ही डीएनएस होता तो फिर लाजमी तौर पर ह्यूज ब्रॉडकास्ट होते। तो वी वांट टू रिड्यूस द ब्रॉडकास्ट डोमेन, बट वी वांट टू फिनिश द कोलिजन डोमेन्स। ठीक है, तो ये तो हो गया यासर के जवाब में। अब मुझे जो चीज समझ नहीं आई कि स्लाइड 1.4.6 ये कौन सी स्लाइड है, लेकिन आपने क्वेश्चन किया वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि एक्सप्लेन IPv4 लूप बैक इंटरफेस। तो लूप बैक का मतलब ये होता है, लूप बैक का मतलब ये होता है कि अगर आप सबसे पहले तो एंड दिस इज ए वर्चुअल इंटरफेस, लेट मी टेल यू दैट दिस इज ए virtual interface. Now this is for and in the IPv4 में हमने एक खास एड्रेस इसके लिए रिजर्व किया हुआ है which you understand which is 127.0.0.any or may I say 127.x.x.x and for example 1.10। और अगर आपको याद हो हमने IPv6 में इसके लिए मुख्तस किया हुआ है $:1। ठीक है ना? ओके, अब ये करता क्या है? करता ये है कि अगर मिसाल के तौर पे हम कोई भी टेस्टिंग पर्पस के लिए हम देखना चाहते हैं कि हमारा डिवाइस जो है वो हमारा जो होस्ट है उस पे ये आईपी मॉडल जो है, ये आईपी सूट जो है, टीसीपी आईपी सूट जो है वो प्रॉपर्ली कॉन्फ़िगर्ड हो गई है या नहीं हुई, तो हम अपने ही कंप्यूटर को पिंग करके इस एड्रेस को दे देते हैं। तो इसका मतलब है कि हम इस इंटरफेस को कह रहे होते हैं कि हमें जवाब दो। जब ये हमें जवाब दे देता है इसका मतलब है कि एटलीस्ट हम किसी दूसरे से भी जवाब मांगे तो वो ठीक आएगा। इसका दूसरा जो फायदा हमें होता है वो, अगर आप प्रोग्रामर हैं और आप प्रोग्रामिंग प्रोग्राम्स लिख रहे हैं फॉर दी क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशंस, या मिसाल तौर पे वो दो डिवाइसेस पे उसने उस एप्लीकेशन, चाहे मान पीयर टू पीयर एप्लीकेशन, तो दो डिवाइसेस के ऊपर एक तरफ आपने मे आई कॉल्ड द सर्वर, मे आई कॉल्ड द क्लाइंट, तो या तो ये कि आप उसको दो डिफरेंट कंप्यूटर्स के ऊपर इंस्टॉल करें, क्लाइंट को एक पे इंस्टॉल करें और सर्वर को दूसरे पे इंस्टॉल करें। हम ये करते ये कि हम क्लाइंट को भी उसी के ऊपर रख लेते हैं और सर्वर को भी उसी पे रख लेते हैं, और हम एड्रेस जो दे देते हैं हम उसको ये लूप बैक इंटरफेस दे देते हैं। तो यू टू डू दिस लूप बैक इंटरफेस, दीज टू एप्लीकेशन टॉक टू वन अनदर, तो हमारा टेस्टिंग विद इन दी एक हो जाता है। अदरवाइज हम चार चार दो कंप्यूटर लेकर और बैठे होते हैं कि जी यहाँ से भेजता हूँ, वहां पे रिसीव करता हूँ एंड समथिंग लाइक दिस। तो हमें एक ही कंप्यूटर पे अपना जो एप्लीकेशंस हमने लिखी होती हैं, नेटवर्क एप्लीकेशंस, वो टेस्ट हो जाती हैं। मेरा ख्याल से आफाक का ये क्वेश्चन है, अगर नहीं है तो मुझे क्वेश्चन एटलीस्ट समझ नहीं आई। आपने कहा कि जी एक्सप्लेन IPv4 लूप बैक इंटरफेस, तो दिस इज, अगर सिर्फ IPv4 की बात कर रहे हैं तो दिस द एड्रेस ऑफ दिस लॉजिकल इंटरफेस विद दिस एड्रेस इज IPv4 लूप बैक इंटरफेस। अगर आप कहते हैं कि जी IPv6 लूप बैक इंटरफेस, तो दिस इज द again a logical interface, a virtual interface with the address this one.
Have I explained it, Afaq? Tabish has raised her hand. So Tabish ने अगर hand raise किया है तो he want to ask me something. जी Tabish, do you want to ask me something? वालेकुम अस्सलाम. वालेकुम अस्सलाम. सर मैं इस कोलिजन डोमेन के बारे में पढ़ रहा था सर, वहाँ पे मैंने एक स्टेटमेंट पढ़ी थी, अगर आप तो सुने कि each port on hub is the same collision domain and each port on the switch is in separate collision domain. सर तो क्या ये भी ओल्ड कांसेप्ट है सर? नहीं, ये तो नया कांसेप्ट है ना, ये तो सही हम बात, ये मैंने भी कुछ देर पहले जो मैंने इस स्लाइड में, मैं वापस जाता हूँ स्लाइड पे, मैंने इस स्लाइड पे ये चीज एक्सप्लेन की अभी कुछ देर पहले मैंने, जैसे ये चलिए इसी को ले लेते हैं, तो ये जो चाहे अगर आपका हब है, हम यहाँ पे एक हब भी बना लेते हैं आपके इस चीज को कंप्लीट करने के लिए, ये एक हब है और इसके साथ ये डिवाइसेस जो 1 2 3 4 5 लगी हुई हैं, ये सब के सब इसके साथ भी हम टेस्टिंग पर्पस के लिए लगा देते हैं। अब आपने देखा कि अगर हम बात कर रहे हैं नॉट द ब्रॉडकास्ट डोमेन, हम कोलिजन डोमेन की बात कर रहे हैं। तो कोलिजन डोमेन में ये है कि जो ही हम कोई भी चीज लेट करेंगे पास करना चाहते हैं इस नोड को, दिस नोड, लेकिन the feature of the hub is that it will send to all the nodes. So that is the reason it becomes a part of a single collision domain. क्योंकि अगर इसी वक्त कोई और नोड यहाँ पे कुछ चीज भेजने की कोशिश कर रही है तो इसकी मैसेज और इसका मैसेज एक दूसरे के साथ कोलाइड कर सकता है. That's the reason all of these nodes which are connected to the hub are part of the single collision domain. But in case of the switch, we know, which is an intelligent device, here it doesn't happen like this. अगर ये डिवाइस इसको भेजना चाह रही है तो उसके लिए अपना एक चैनल, और क्योंकि and do remember कि hub works in the half duplex mode, so there is a single channel here. That's the reason the collision, there is a single channel here. That's the reason outgoing and incoming traffic may collide with one another. Whereas in the switch, it is a full duplex, so there is no chance of the collision. So there is a single collision domain here, a single collision domain here, which is not affecting others. तो मतलब इस टोपोलॉजी में हमारे पास 5 कोलिजन डोमेन है ना? एक ब्रॉडकास्ट डोमेन, 5 कोलिजन डोमेन्स, बट यहाँ पे एक ही कोलिजन हब के केस में. सर मैंने आपको पुलिस क्लास में क्वेश्चन पूछा था, अगर आपको याद है? मैंने आपने भेजा हुआ, मैंने इसको पढ़ा नहीं है. मैं जी बिल्कुल, आपने व्हाट्सएप किया, मैं उसको आज कुछ देर में पढ़ के और फिर आपको रिस्पॉन्ड करता हूँ. मैंने उसको सिर्फ खोला कि आपका मैसेज आया हुआ था, लेकिन मैं उसको रीड नहीं किया. रीड करके मैं आई रिस्पॉन्ड यू बैक. So seems that there is no question. So Allah Hafiz. And अगर next week मैंने क्लास रखी तो I will inform you prior. अगर नहीं हुई तो we will have the Thursday Friday, because this will be the next week will be the last class in the Ramzan, and then we will be free. Then खाना पीना भी possible होगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा. तो हम देखेंगे, लेकिन at least 2 days confirm इंशाल्लाह. Allah Hafiz to everyone. लेकिन अगर वेडनेसडे हुआ तो आई विल इन्फॉर्म यू प्रायर.